Hello, students. In fact, I should say hello, my future doctors, right? So it's almost just like less than 2 weeks for your D Day, isn't it? So welcome to once again your An Academy platform for the NEET segment. This is your mentor Rahul Ghosh, your chemistry teacher, your mentor. So in last के 12 दिन, लास्ट के 10-12 दिन हम लोग बिल्कुल साथ में रहेंगे एंड आई विल वॉक यू थ्रू द लास्ट फ्यू माइल्स जिसके लिए आपने पूरे साल वेट किया. सच एन अनफॉर्चुनेट पेंडेमिक सिचुएशन जिसमें सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रही, आज होगा कल होगा. अल्टीमेटली 13 सितंबर इज़ देयर इन द साइट, राइट? सो हम लोग कल से 1st of September आई राहुल घोष इज़ गोइंग टू बी डेली विथ यू ट्वाइस, राइट? तो वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, हम लोग क्या करने वाले हैं. एंड आई फर्मली बिलीव दैट हम लोग इस चीज़ का बहुत अच्छा हम फ़ायदा उठा पाएंगे एंड लास्ट फ्यू डेज़ में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे. ऑलरेडी आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं पूरे साल. इट इज़ जस्ट द लास्ट फ्यू डेज़ जो आप लोगों को होल्ड करके रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, थोड़ा मोटिवेटेड रहना है, जिससे कि हम लोग डी डे में बिल्कुल स्मूथली एंटर कर पाएँ, आप लोग स्माइल करते हुए जाएं और अपनी अच्छी सी स्माइल लेकर वापस भी आएँ. सो एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, I'm going to be always with you. This is your mentor Rahul Ghosh, right? अच्छा, तो हम लोग अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोग आप सबका स्वागत है एंड वी आर गोइंग टू क्रैक नीट एग्ज़ाम, दिस बिग एग्ज़ाम, मच अवेटेड एग्ज़ाम टुगेदर, राइट? आई विल बी देयर ऑलवेज विथ यू. सो उसके लिए आप लोगों ने आई होप ऑलरेडी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, अन अकेडमी ऐप, लर्निंग ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव डन दैट बिकॉज यू आर स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट? सो प्लीज़ डू सो, इंस्टॉल दैट. अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो यू हैव गॉट यूट्यूब ऑब्वियसली एंड देन दिस इज़ ऑल्सो नीडेड, राइट? आप सबको पता है कि यू गेट लॉट ऑफ लाइव क्लासेस हियर ऑन अ डेली बेसिस. मेरे साथ भी आपको दिन में 2 बार आपको लाइव क्लासेस मिलने वाला है इसके साथ, राइट? एंड यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ लाइव बिकॉज you can see the recordings, that's fine. You have got unlimited access, you'll see the recordings, but in the live class, the quizzes that we do, the kind of brainstorming that we are going to do, it is very important that you attend all the live sessions also, right? You should plan your schedule accordingly, right? Now in the live classes there are so many great educators across India who are they are also burning their midnight oil to help you guys to give the paper as smoothly as possible, as nicely as possible, right? So we have got great educators, Dr. S.K. Singh, Anand Mani sir, right? Everybody is over there. So and many more educators are joining the platform, all with the one focus that we the educators be with you the students always 24/7, so that together we can taste success, right? Okay, so now the little bit of the subscription part, because YouTube is always there, but along with that your as far as your an academy learning app is concerned, it is a wonderful thing, and you do get always something extra in the learning app also, in addition to what quality content we are delivering there on YouTube, totally free. So last few days are left, so 1 month, 3 months, 6 months does not work for you, but for all the other students who are also thinking of giving the paper next year, right? They are giving this paper, they are trying their best, you are trying your best, but along with that you are also keeping an eye on next year's NEET. So 1 year subscription is for you only, right? And those who are in class 11th right now, and they are also joining me in this
venture for next 11-12 days, because after that I'll be again starting with the structured course for class 11th and 12th, right? So they should also look into it. They will get the feel of it, the highs and lows of solving the questions live, and it's like kind of your mock sessions, isn't it? When we will discuss the questions, it is kind of mock sessions, and within that time frame we will try to solve it, right? So remember, I am your mentor Rahul Ghosh, right? And this is my code. So the moment you apply that in the Unacademy platform app, learning app, you instantaneously get 10% discount. Already the prices are very quite economical. They are pretty well thought about, and उसके बाद भी आप जब राहुल वन उसमें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी मेकिंग थिंग. हम क्या करने वाले हैं? तो हमारे पास 12 दिन रह गए हैं. टुडे इज 31, टुमारो is September 1, and tomorrow we will start our course. We'll start interacting with each other. So it is like a 12 days NEET chemistry challenge that we are going to take, and all you have to say one thing. You can see it there, I can and I will. हमें करना ही होगा. पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल हमने दिया इस चीज के पीछे. So we are going to do that, and you may take me as a little bit of last moment catalyst, जो आपके ऑलरेडी इतने अच्छे प्रिपरेशन को थोड़ा सा और हेल्प करेगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वेल, दिस इज समथिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट, एंड आप पे ही नहीं है, मुझ पे भी एप्लीकेबल होता है, हर किसी पे एप्लीकेबल होता है. वट एवर हैज गॉन इन पास्ट, इट्स गॉन, यू कैन नॉट चेंज इट. जो आपने किसी ने हो सकता है बहुत अच्छा बिल्कुल शुरू से तैयारी स्टार्ट कर दिया हो, किसी ने 1 महीने बाद किया होगा, किसी ने 2 महीने बाद किया होगा. मे बी आप में से कुछ जने ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जनवरी से तैयारी करना स्टार्ट किया, राइट? सो अभी सोच के फ़ायदा नहीं है कि व्हाट कुड हैव बीन डन. वो सोच के टाइम बर्बाद होगा. अभी हमारे पास 12 दिन है हाथ में, जान लगा देते हैं, कुछ तो अच्छा ही होगा ना, right? So yesterday cannot be recovered, but tomorrow is there for us to win, decide our win or lose. Let's aim the sky. हम लोग कहीं तो बहुत ऊपर पहुंचेंगे. So 12 days are not to be wasted. So what are the do's and what are the strategies that we can think about in next 12 days, and how am I going to help you out in this venture, right? So let's discuss that quickly. All the best buddies, right? तो कुछ टिप्स जो आप लोग जानते भी होंगे, बट देन देर आर थिंग्स विच वी नीड टू टाइम एंड अगेन कीप ऑन रिपीटिंग, राइट? चाहे वो एज आप लोगों का सीनियर मैं कर रहा हूँ, या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स कर रहे हैं, आप लोग खुद अपने आप से आप बोलिए. कुछ चीज़ें जो है हमेशा हमें बोलते रहना पड़ता है, बिकॉज वी आर सो into many things, so many subjects, so a lot of things are going on, even when one subject, class 11 stuff, class 12 stuff. So these things are there in the back of the mind, but कई बार हम लोग भूल जाते हैं. तो लेट्स क्विकली गेट इनटू दैट. सो इट्स टाइम यू चेक आउट योर एडमिट कार्ड, राइट? एंड एडमिट कार्ड आपका सेंटर का आपका कहाँ पे है, या अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बोला गया है, सो इट्स डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि उस वक्त जो है पैनिक बढ़ेगा, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा. सो अभी भी हाथ में 12 दिन है. सो अभी से ही इन सारी चीज़ों को तैयार करके एक अलग से एक छोटा सा पाउच बना के आप उसमें रख लीजिए. सो यू आर टोटली फ्री, मेंटली यू आर फ्री, कि आपको इस बारे में अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव डन इट. तो एक एक दिल से बोझ निकल जाएगा कि यू आर रेडी, यू हैव इनिशिएटेड एवरीथिंग, राइट? सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर एडमिट कार्ड, सेंटर्स, पेन, पेंसिल, वट एवर इज नीडेड. आप उसको टाइम रहते ही 10 दिन पहले ही आप उसको बना लीजिए, राइट? अच्छा, नाउ ऑल ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू द होल सिलेबस वंस ट्वाइस. रिविजन भी आपका ब्रॉड लेवल पे आपने करना स्टार्ट कर दिया होगा. अब आपका लास्ट जो 12 दिन है, अब उसको स्टार्ट करने से पहले
जस्ट टेक आउट योर नीट सिलेबस वंस एंड बहुत बारीकी से एक एक टॉपिक को जरा आप ध्यान से आप देखिए एंड ट्राई टू फिगर आउट, इज देयर एनी टॉपिक दैट इज स्टिल लेफ्ट, और इज देयर एनी टॉपिक दैट आपने बाद में के लिए रख दिया था और वो बाद में आ चुका है क्योंकि अब 12 दिन बाद पेपर है आपका, and you are yet to brush it up, and it might be a very important topic for your NEET based on past few years question papers, right? So kind of a double cross check आपने करा होगा अच्छी तरीके से, but still I'll suggest कि आप लोग एक बार NEET सिलेबस अपना लेकर बैठिए एंड उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि उसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कोई एक छोटा मोटा टॉपिक ऐसा नहीं रह गया जो आपको एक बार और देख लेना चाहिए, राइट? सो यू शुड डू दैट, राइट? नाउ आप लोगों का सिलेबस हो चुका है, यू आर इन द रिविजन मोड एंड यू माइट बी टेकिंग डेली 2-3 और एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली. नाउ माय फ्यूचर डॉक्टर्स, स्लो डाउन अ लिटिल, थोड़ा सा अब आप इस चीज़ को होल्ड करिए, बिकॉज एनी मॉक टेस्ट इज गोइंग टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 hours, राइट? सो अभी जो है आप ऑल्टरनेटिव डेज कर लीजिए, राइट? डेली अभी 1 या 2 टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. देर आर स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो मुझे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कैन यू सेंड अस फ्यू मोर मॉक टेस्ट पेपर्स. सो राइट नाउ यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी. डेली 2 मॉक टेस्ट करने का अब टाइम नहीं है, राइट? एक कर लिया दिन में काफ़ी है, बिकॉज नाउ यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन अदर topics, all the subjects, because as bio students tendency होता है कि we focus more on biology, zoology and your botany, right? However physics and chemistry is equally important. आप सब जानते हैं, मुझे नए से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. सो इसलिए अब आपको उन टॉपिक्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा जो you might have thought कि आसान है, या so right now you cannot be complacent about anything, right? So it is kind of, you have to tighten yourself for all the topics that is out there, besides your zoology, botany, your chemistry and physics, both are important. Physics में आप लोग last time पे आते आते फिर भी ध्यान दे देते हैं, पर chemistry many a times we are complacent. आता है, ये आता है attitude जो है कई बार हमें नुकसान दे सकता है. So that's why this point, right? अच्छा, now आप लोगों ने टाइम टेबल डेफिनेटली बनाया होगा, आप लोग उसको शायद फॉलो भी करते होंगे, बट कई बार ह्यूमन टेंडेंसी है, आप थोड़ा बहुत डेविएट कर जाता है, और एक बार डेविएशन होता है तो हम में से ऐसे कितने जने होंगे फिर वो वापस उस ट्रैक पे नहीं आ पाते. सब भूल जाइए, आज बैठकर अगले 12 दिन के लिए, अगले 10 दिन के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, और जो रियलिस्टिक हो. अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, जो आप डे 1 में ही आप थक जाएंगे एंड देन यू विल बी अगेन बैक टू स्क्वायर कि अब जो जब मन कर रहा है हम वो उठा के पढ़ रहे हैं. इट कैन नॉट बी लाइक दैट. सो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल राइट नाउ, राइट? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू योर टाइम टेबल फॉर योर नेक्स्ट 10 days. आपके अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड यू मस्ट स्टिक टू द टाइम टेबल ऑल्सो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं है, एक इम्प्रेसिव टाइम टेबल बना लिया, पर अब उसको करेंगे क्या, लगा दिया उस पर. एवरीबडी इज़ इन ऑ, हमारे बेटे ने, मेरे भैया ने, राइट? योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, 1 or 2 माइट बी विजिटिंग यू. व्हाट एन इम्प्रेसिव टाइम टेबल, राइट? आप टाइम टेबल दूसरों के लिए नहीं बना रहे हैं, आप टाइम टेबल अपने लिए बना रहे हैं जो आप फॉलो करेंगे. बाकियों का छोड़ो, आप पेपर आपने देना है, बाकी उन्हें नहीं, राइट? एंड 10-11 घंटे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर बांट के 10-11 घंटे यू शुड मेक योर टाइम टेबल. लाइक ऐसा नहीं कि लास्ट के 10 दिन आ गए हैं तो हम लोग अब 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली थका दोगे, right? So by the time you reach the D-Day, you might have used up your energy. So do not do that, right? So it should be a realistic one. Stick to 10 to 12 hours, like 3 hours for each subject maybe. So accordingly आपको पता है कि कौन सा ज़्यादा अभी भी आपको टाइम देना है. Accordingly you must work it out. Now it is not the time when आप
अभी आप पूरा चैप्टर निकाल कर बैठे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है या कोई दूसरा बुक है, आप सबने अपने नोट्स बनाए होंगे, आप सबने फ्लो चार्ट्स, चीट शीट्स, राइट, योर माइंड मैप्स, किसी भी नाम से आप इनको बोलिए, आप सबने अपने बनाए भी होंगे. आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग देम ऑन अ डेली बेसिस, राइट. सो अभी आपको टाइम है उन चीज़ों से क्विक रिविजन का, right now you cannot spend like say 1 or 2 hours just reading one particular chapter. You have to be very tight about the time that you are going to spend. So right now 15 minute revision, आधे घंटे का रिविजन, एंड आई विल बी ऑल्सो कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड तो उसमें भी अगर आप 1 घंटे पूरा आप उसको अच्छी तरीके से आप फॉलो करते हैं तो वो आपका चैप्टर वहाँ पे बन जाना चाहिए. बिकॉज राइट नाउ it is not study the whole theory and then attempt the questions वाला time, ठीक है. rather it is attack the questions, previous year questions, whatever concept you have gained, you have learned throughout the year, right, throughout the academic session, whatever you have learned, you have to attack the questions. हो गया, बहुत अच्छी बात है. नहीं होता है तो कहाँ पे निगल हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हो, go back and check it out, right. So you have to attempt previous year questions of both NEET and JEE Mains. Don't forget JEE Mains, right. ऐसे बहुत सारे questions हैं जो JEE Mains के आपके NEET में repeat होते हैं, right. उनके concepts at least repeat होते हैं. So last few years के JEE Mains के questions, NEET के questions मैं भी करवाऊंगा, राइट. पर आप लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए, और उसके बेस्ड अगर कहीं पे आप अटकते हैं तो उसका रिलेटेड थ्योरी, उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट. सबसे बड़ी बात, हिम्मत नहीं हारनी है. दिस इज द टाइम यू शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड. लास्ट 12 days 13 डे आपका पेपर ही है, राइट. सो अभी आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, एंड यू आर रेडी फॉर द पेपर. बिलीव मी माई फ्यूचर डॉक्स, यू आर रेडी फॉर द इवेंट, राइट. सो डू नॉट लूज हार्ट. 10 क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, 3 नहीं हो पाए तो मुझसे इस साल का पेपर क्रैक नहीं होगा, इस तरह के ख्याल आपके मन में नहीं आने चाहिए, राइट. सो ऑलवेज कीप द चिन अप, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड. You are going to do it, right. जितना करेंगे अच्छी तरीके से करेंगे, दिल को हम डिमोटिवेट नहीं होने देंगे. We'll stay focused, we'll stay motivated. So my soldiers, my future docs, chin up, right. We all of us are with you guys. Now this happens many a times. मेरे साथ हुआ था when I was a student. It does happen because you are so much into your thoughts. ये कर लिया, ये रह गया, थोड़ा सा और टाइम निकल जाएगा, ये कर लेंगे. So what happens, we start ignoring our surroundings. This point is very important. So do not isolate yourself. Very important point. You must not isolate yourself. Everybody is with you. हर कोई आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है अगर आप परमिशन दें तो कई बार क्या होता है, हम लोग अंदर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा दिया, 10 घंटे 15 घंटे. इसमें कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा भी एक भी अगर नेगेटिव थॉट आया ना, यू मे फील लिटिल डिप्रेस्ड. वो नहीं होना चाहिए. राइट नाउ एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव अबाउट यू, अबाउट योर सराउंडिंग्स. इसमें पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है. दे आर अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन यू. They also know the seriousness. They throughout the year they have seen you work hard. Last के कुछ दिनों में तो और ज़्यादा they are seeing that you are working hard. आप दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं. Last few days, right? Let them come to you as and when. आप बीच बीच में छोटे छोटे आपको ब्रेक्स लेने चाहिए, right? Like एक साथ 3 घंटे ना पढ़ के maybe like 1.5 घंटा पढ़ा. Take a 10 minutes of break. Go and sit with your mom. Ask her something. Maybe कुछ बना दो, ये दे दो, वो दे दो. तो दे ऑल्सो फील वॉन्टेड, राइट. कि आप भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं. डैड के साथ बैठिए, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स किसी के साथ भी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए. उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, फ्लो नहीं टूट रहा है. यू आर विद देम. दे आर ऑल्सो अपडेटेड कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं. दे विल ऑल्सो फील गुड एंड दे आर ऑलवेज देयर टू कंस्ट्रक्ट
टू हेल्प यू कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली, ठीक है। सो इसलिए आपको अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ लेना का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। बिकॉज दिस टाइम क्या होता है, हम लोग इतने इंटेंस हम लोग लगे होते हैं, कई बार क्या होता है खाना दे दिया क्योंकि आप इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं, तो आपकी मॉम ने, आपकी सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने आके आपको खाना दे दिया, दूध दे दिया, नाश्ता दे दिया, आप तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, राइट, एंड यू इवन फॉरगेट टू हैव योर मील। ये नहीं होना चाहिए। It should not be neglected. Your physical health and mental health both is equally important, very important in fact in these last few days, right? अच्छा, 10 दिन सॉलिड लग कर जब तैयारी हम कर लेंगे, ये लास्ट की कुछ चीज़ें हम लोग तैयारी कर लेंगे, उसके बाद ऑन द 11th डे एंड द 12th डे भले ही आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक रह गया, कुछ रह गया, माई एडवाइस इज कि डू नॉट वेंचर आउट इनटू न्यू एरियाज ऑन द लास्ट 2 days। वो आपकी एंजाइटी बढ़ाएगा। आपने कर लिया, आपने एनफ तैयारी कर लिया है उसमें, अगर आपने सीरियसली लेकर इतने दिन तैयारी किया है तो आपके पास एनफ एम्यूनेशंस हैं नीट को अटैक करने के लिए। सो लास्ट के 2 दिन में बैठ करके अच्छा ये केमिस्ट्री में ये 5 टॉपिक रह गए, फिजिक्स में ये 4 टॉपिक रह गए, जूलॉजी में ये रह गए, अभी वो करने का टाइम नहीं। यू विल स्पेंड द होल डे और उसके बाद भी आपको लगेगा, बिकॉज एंजाइटी है ना अंदर। सो जो चीज़ आपका आधे घंटे में हो जाना चाहिए था वो 2 घंटे 3 घंटे बाद भी लगेगा शायद मेरा हो नहीं पा रहा है, आई एम नॉट एबल टू क्रैक क्वेश्चंस। सो डोंट गेट इनटू दैट, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, यू हैव डन एनफ। सो लास्ट के 2 दिन फिर क्या करें, लास्ट के 2 दिन आपने ये पिछले 10 दिन में क्या जो भी आपने इंटेंस प्रैक्टिस किया था, इससे पहले भी जो आपने नोट्स बनाए, एक लाइट ग्लांसिंग काफ़ी है उनका, ठीक है, देखते रहिए। एंड हाँ ऑफ कोर्स जैसे जैसे बीच में टाइम मिले रिलैक्स कर रहे हैं आप जेई के और नीट के लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहिए, आपके पास नए क्वेश्चंस भी होंगे उनको भी आप देखते रहिए, बट लास्ट के 2 दिन रिलैक्स करना, मेंटली रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, देयर शुड नॉट बी एनी एंजाइटी। तो अब हम नेक्स्ट 10 दिन हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 12 दिन हम क्या करने वाले हैं, और अगले 10 दिन किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं, ये हम आगे देखते हैं। डू नॉट फॉरगेट यू हैव गॉट माई प्रोमो कोड, माई कोड Rahul1 एंड आई एम योर मेंटर राहुल घोष। और अब हम बिल्कुल लास्ट तक साथ में रहने वाले हैं, और जो लोग आगे और चल के पेपर देने वाले हैं, थ्रू आउट द ईयर आई विल बी विथ यू, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सो डे 1 में अब ये 12 दिनों का ब्रेकअप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आई विल बी टेकिंग क्लासेस ट्वाइस डेली इन अ फिक्स्ड टाइम, राइट। और ये 2 जो हमारी क्लासेस होंगी वो होगी, एक सुबह 10 AM to 11 AM, राइट, एक सुबह 10 से 11 बजे होएगा, एंड दोबारा रात को 9 to 10 होगा। What I have done here is, of course, सुबह वाली क्लास जो आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे होगा, एंड रात को वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगा। इसलिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सो दैट कि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स। आप लोग अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, लाइव हम लोग बात जब करेंगे तब भी आप लोग अपने डाउट्स उस रिलेटिव टॉपिक से आप लोग शेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग ऑल द टॉपिक्स, द होल स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट 10-12 days आई एम शेयरिंग विथ यू बिफोर हैंड, राइट। तो आप लोग ऑलरेडी अपनी तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं कि सो एंड सो डे पे राहुल सर इज गोइंग टू टीच अस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई हैव गॉट दीज डाउट्स, आई मस्ट शेयर दैट विद राहुल सर सो दैट ही कैन हेल्प मी आउट, राइट। So day 1 पे we are going to do chemical bonding in the morning session, chemical bonding and molecular structure. We will be discussing various important topics within this chapter, right, Vesper theory, VBT, MOT, hydrogen bonding and all, and we'll have a quick glance. I'm not going to teach you in detail right now, right, because you do not need that. So we'll be covering the kind of a revision kind of a thing, last minute revision. So within 1 hour we'll be covering that also. I'll be also sharing some tricks and tips which can save your valuable time in paper, right, and of course we'll be doing, along with that we'll be doing some problem solving, but it is 9 to 10 PM at night when we are going to exclusively take up some good questions, some interesting questions on chemical bonding and molecular structure at night. So this will be the pattern,
राइट. सो ये आप पैटर्न मान के चलिए कि दिन में हम लोग जो है पूरे टॉपिक का एक क्विक रिविजन करेंगे फ्रॉम 10 to 11 AM, एंड देन फिर रात को हम लोग 9 से 10 बजे हम लोग उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे. आप लोग भी अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, एंड मैं अपनी तरफ से एक बैग फुल ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, चाहे वो प्रीवियस ईयर के जेईई मेन से रहा हो, नीट से रहा हो, राइट. वी आर गोइंग टू follow this pattern. So day 1 will be dedicated to chemical bonding and molecular structure. Day 2 I'll be covering chemical equilibrium, right. In the morning session, doing various topics, we'll have again quick glance, we'll attempt a number of important questions, and at night, since it's a big chapter, so I have divided this in 2 segments. So रात को हम लोग दोबारा आयनिक इक्विलिब्रियम का यानी नेक्स्ट हाफ जो है आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर का, दैट विल गो थ्रू आयनिक इक्विलिब्रियम एंड उसके रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक ग्लांस, राइट, क्विक रिविजन यू कैन से, एंड विल crack important questions, previous year questions और भी अच्छे questions. We are going to crack that in the night class, right. Then next day, day 3, another important topic, chemical kinetics. So again in the morning session we are going to have a thorough quick revision of chemical kinetics. I'll be touching various topics which from where your questions have come, which may be important in the 13th September paper also, right, of 2020. And at night we'll be attacking various questions which are from chemical kinetics and related topics, right. Day 4 बच्चों, we are going to get into जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, अ टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये तो आसान है और कई बार करने भी जाते हैं तो थोड़ा फंसते हैं. अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑन ऑल दीज टॉपिक्स एंड यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ GOC. सो इसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई ना आए, दूसरे किसी चैप्टर में इसका कोई ना कोई इनपुट ज़रूर रहेगा. सो इट फॉर्म्स द बॉटम लाइन ऑफ एनी ऑफ द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है बेसिकली, राइट. सो विल बी looking into various topics of GOC in the morning session, and again at night we'll be attempting various important questions from previous year's question papers, both JEE and NEET, and some other questions जो कि मुझे लगेगा important है आप सबके लिए. आप लोग अपने questions भी definitely share कर सकते हैं. Unacademy learning app अगर downloaded है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, please do not forget to download that, and you have to use my code Rahul1, right. So do not forget that बच्चों, right. Day 5 we are going to dedicate this to hydrocarbons, alkyl halides, aryl halides, and उसके जितने भी preparations and बाकी chemical properties, reagents, right. हम वो सब हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें. कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स अगर होगा तो वो भी हम लोग इसमें डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इन्हीं टॉपिक्स के फिर से हम लोग रात को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम 9 to 10 PM, राइट. सो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये 2 टाइम मैंने फिक्स कर दिया आप लोगों के लिए. सो यू डू नॉट हैव टू एवरी डे थिंक कि कल किस टाइम पे क्लास होने वाला है. सो नेक्स्ट 12 days we are going to meet twice daily, once in YouTube and then again in Unacademy learning app at night, 10 to 11 in the morning, 9 to 10 PM in the evening, right. On day 6 we'll be attacking topics like alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, very important topics, especially aldehydes, ketones, right. We'll be again quickly covering various aspects of these topics, right, and we'll do all the important questions at night in 9 to 10 PM. But before we do the sessions, आप लोगों की अपना होमवर्क होना शुरू हो जाना चाहिए. एंड ऑल्सो आप लोग, क्योंकि आप लोग दूसरे टॉपिक से पढ़ेंगे, आप लोग दूसरे चैप्टर्स भी कर रहे होंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप लोग पढ़ रहे होंगे. दैट्स वाई आई सेड दैट कि आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड यू नो दैट कि विच डे विच टॉपिक इज़ गोइंग टू बी डन, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग अपना होमवर्क, आई टोटली बिलीव आप लोग भी अपना होमवर्क करके रखेंगे, राइट. अच्छा, एंड नाउ ऑन डे 7
Day 7 is again very important because very important topics, carboxylic acids, amines and other nitrogen based compounds like nitro, cyanides and all we are going to cover on day 7, right? And as the pattern had been, रात को फिर हम लोग उसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, दिन में भी करेंगे ऑफ कोर्स। वी हैव टू एज आई सेड राइट नाउ, पूरा चैप्टर पढ़ के फिर क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है, रैदर यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस एंड फ्रॉम देयर इफ देयर इज अ निगल विल गो बैक टू द थ्योरी। सो दोनों चीजें चलता रहेगा, बट रात को एक्सक्लूसिवली हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, राइट? अच्छा, नाउ इट्स टाइम ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, right? And mix of little physical chemistry also. So mole concept, stoichiometry, very important concepts, right? So mole concept, stoichiometry, solutions, electrochemistry, हमारा टारगेट इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहेगा बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, राइट? तो ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब टॉपिक्स ही इनफैक्ट इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग क्रॉस लिंकिंग करते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स का भी हो सकता है, तो वो भी हम यहाँ पर हम उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, कुछ टिप्स वगैरह हम सीखेंगे जिसमें बहुत मिनिमम टाइम में हम लोग क्वेश्चंस को हम कर पाएँ। एंड रात को एक्सक्लूसिवली हम लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। Day 9, now totally into inorganic chemistry, we'll be doing periodic classifications, applying its various principles, exceptions, right? Exceptions को ज़्यादा importance हमें देना पड़ता है, right? And inorganic chemistry, students, you all know that की is काइंड ऑफ ऑल लास्ट फ्यू ईयर्स से तो पूरा ही एनसीईआरटी से है। सो आई बिलीव दैट कि आप लोगों का एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, या फिर एक क्विक ग्लांस आप लोग क्लास से पहले अपने एनसीईआरटी को निकालिए, क्लास 11th एंड 12th, एक क्विक ग्लांस, राइट? एक चैप्टर पे 10 से 15 मिनट, इट्स नॉट लाइक कि लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी होंगी उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्योंकि बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी होता है इसमें, राइट? सो वो चीज़ें आपने अंडरलाइन कर रखा होगा। बाय एंड ऑल एक बार आप लोगों ने देख लिया, फिर मैंने आपको पूरा डिटेल में ये सारे टॉपिक्स मैंने भी आप लोगों के साथ कवर किया, एंड देन अगेन एट नाइट वी आर गोइंग टू डू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अगेन ये दोनों टाइम आप लोगों को बिल्कुल अपना शेड्यूल में ध्यान रखना है। यू मस्ट फिक्स योर शेड्यूल, योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, राइट? नाउ ऑन डे 10 विल मूव फॉरवर्ड, पी ब्लॉक तक हमने बना लिया है। सो लास्ट डे ऑफ डूइंग दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी कवरिंग रेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन सब के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अप्लाई करेंगे। कुछ नए अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जो आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग पहले जानते हो, कुछ लोग उस दिन जान जाएंगे, बट बाय एंड लार्ज विल बी हैविंग सम वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ट्वाइस डेली। एज यू कैन सी, रात को हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग जो दिन में हमने जो टॉपिक कवर किया, हम रात को उस चीज़ को फिर से दोबारा पढ़ेंगे, राइट? सो ये आपके 10 दिन, दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई विल बी कवरिंग विथ ऑल ऑफ यू। नाउ डे 11 क्या करना है? डे 11 अब कोई टॉपिक नहीं उठाने वाले हम लोग सारे टॉपिक हम उठाने वाले। क्या करेंगे हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स का थॉरो डिस्कशन करने वाले हैं। सुबह आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द जेईई मेन पेपर्स, सम ऑफ the very important questions from the JEE main papers, and शाम को I'll be taking both JEE and NEET papers के important questions for physical, inorganic and organic chemistry, and we'll be meeting for the final time on day 12, and we'll be covering again as we did on night of day 11, we'll be covering important topics again from JEE main papers and important questions and from JEE main papers and NEET papers of previous years obviously. And then you guys can relax, and you know that कि you have done pretty well by yourself. हम सब टीचर्स आप सबके साथ हैं, हम सारे एडुकेटर्स पैन इंडिया आप सबके साथ हैं। We all will pray together, relax, बिल्कुल कोई एंजाइटी नहीं होना चाहिए। इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आप लोग देखेंगे आप लोग खुद काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर निगल होगा तो वी टुगेदर वी आर गोइंग टू आयरन दैट आउट, वी आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग as perfect as possible for your D-Day, for your day 13th, right? And you always have to remember that you have got it in you, so you will
and you can, right? So with this, I am your Rahul sir, right? My code is Rahul1. You can definitely log in and take 1 year or 2 year subscription for the students who are going to appear next year or next to next year. And we are always going to stay connected. I know I'm going to enjoy your company, and I bet you are going to enjoy my company also. स्ट्रेस फ्री लर्निंग करेंगे, 13th की तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं कल से डेली ट्वाइस 9 to 10 a.m. in the morning YouTube sessions, and 10 to 10 to 11 in the morning sessions, and 9 to 10 in the night sessions, right? All the best for next 12 days. एंड माई फ्यूचर डॉक्टर्स, आई नो आप सब लोग मुझे खुशखबरी सुनाने वाले हो, पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को आप सब पे बहुत नाज है, एंड वी all are praying and working for your success only. See you tomorrow. See you guys, right? Bye.